inclined surface level to higher level, and the inclined plane is used to raise a heavy load easily by moving it along an inclined surface, as it is difficult to raise it vertically by lifting it. If you will see figure 4.14 an inclined plane, देख रहे हैं आप लोग टेक्स्ट बुक में सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, रेड Yes, ma'am. आप जो देख रहे हैं रेड एरो देखिए, रेड एरो देखिए और ब्लू एरो देखिए। अब देखिए अगर आप उसी ड्रम को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, या अगर आप देखिए 4.16 फिगर 4.16 अ प्लैंक बीइंग यूज्ड एज एन इंक्लाइंड प्लेन, देख रहे हैं आप लोग वो लोग ड्रम को रोल करके ऊपर चढ़ा रहे हैं। अगर मान लीजिए वही दोनों अगर रोल करके नहीं चढ़ाते ऊपर तो उन लोगों को ज्यादा मेहनत लगती लगती कि नहीं लगती, और टाइम भी ज्यादा लगता। तो अगर वो ऐसे रोल करके जल्दी जल्दी कर लेंगे तो वो जल्दी से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंक्लाइंड प्लेन को हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लैंक, you must have seen laborers using an inclined wooden plank to load heavy barrels etc upon a cart or truck. They do so because they need a much smaller force to push the load up the inclined plane as compared to what would they need if they were to lift the load directly vertically up. समझ में आया सबको क्या होता है inclined plane? Yes, ma'am. अब स्क्रू सबने देखा है घर में? Yes, ma'am. कहाँ कहाँ लगाते हैं स्क्रू, याद है कुछ? यस मैम, किसी चीज को उसमें मतलब अटैच करने के लिए स्क्रू लगाते हैं। टाइट करते हैं। आपने कैंची देखी है? कैंची के बीच में भी एक स्क्रू रहता है। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. रहता है। Yes, ma'am. तो screw is a special type of inclined plane that has been rolled up. In order to understand how an inclined plane forms a screw, let us consider the activity. देखिए, screws are generally used to hold things together. A screw is made by cutting spiral grooves on the surface of the metal rod. The spiral ridges so formed are called the threads of the screw. इसको underline करिए. The spiral ridges so formed are called the threads of the screw. The spiral से लेके called the pitch. The distance between the two threads is called the pitch. द स्पाइरल रिजेस से लेके पिच तक अंडरलाइन कर लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में। Okay, done. Now if you will see figure 4.17, you can see screw and it is showing what is thread and what is pitch. It is easier to drive a screw with a screwdriver than by hammering it because the screw has an inclined plane wrapped around a rod. The threads of the screw are like a ramp in a circular form. It is something like a circular staircase. A jack is used by mechanic works on the principle of screw. It is called screw jack. It is used to lift heavy vehicles like car, buses, trucks, etc. आप लोगों ने देखा टायर पंचर होती है तो स्क्रू जैक से ऊपर उठाते हैं फिर टायर चेंज करते हैं, देखा है टीवी में या फिर पापा मम्मी को करते हुए देखा है? Yes, ma'am. देखा है? यस मैम। यस मैम। जिसने नहीं देखा है वो फिगर 4.18 देख ले। द कार इज लिफ्टेड बाय यूजिंग अ स्क्रू जैक। अब देखिए वेज, नेक्स्ट पेज कर लीजिए वेजेस। A wedge is another example of an inclined plane that moves. It has a V-shaped machine. An axe, a knife, and a chisel are the example of wedges. We use them to split things and to cut things. देखिए axe है, knife है और a chisel है, देख रहे हैं? यस मैम। ये जो चिसल है, ये जो चिसल है हम लोग कहाँ यूज करते हैं? देखा है कभी चिसल को यूज होते हुए? वो जो लकड़ी का काम करते हैं ना, जो लोग जो पलंग वगैरह बनाते हैं या टेबल वगैरह बनाते हैं तो लकड़ी को स्मूथ करने के लिए चिसल यूज करते हैं। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, next. If you have any doubt, please ask me personally on my WhatsApp.
Wheel and axle. The wheel is often used like a roller as a means to reduce the friction. When a wheel is used with an axle, it is considered to be a simple machine. An axle itself is a form of wheel. Therefore, a wheel and axle consist of a big cylinder joined to a small cylinder. देखिए आप फिगर 4.122 देखिए, व्हील कहाँ है और एक्सल दिख रहा है उसमें दोनों में. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The big cylinder is called the wheel and the small cylinder is the axle. The wheel turns the axle. In the given figure below, ropes are wound round the wheel and the axle, but in the opposite direction. The rope round the axle is tied to the load, while the one round the wheel is for the effort. Figure 4.24 देखिए, the effort and the load moves in opposite direction. देख रहे हैं? वो अगर नीचे खींच रहा है तो एक्सेल की मदद से लोड ऊपर जा रहा है. देख रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The windlass. Figure 4.25C. A windlass. A screwdriver, a water tap, a door handle or cross spanner and an egg beater are some of the machines that function as wheel and axle. सभी में देखिए व्हील कहाँ पर है और एक्सेल कहाँ पे है, दिख रहा है? Yes, ma'am. ठीक Yes, है. ma'am. अब नेक्स्ट, अब पुली that which is used for lifting a load by applying an effort in a suitable and convenient direction. With a pulley, a bucket full of water from a well can be easily raised by applying the effort in a convenient downward direction. कुएं से पानी निकालते हुए देखा होगा आप लोगों ने. Yes, ma'am. तो देखिए फिगर Yes, ma'am. Yes, ma'am. 4.26 में देखिए पुली में स्ट्रिंग बंधा हुआ है, रस्सी बंधी हुई है. ठीक है. तो जब पुली से स्ट्रिंग को नीचे करते हैं, बकेट अपने आप ऊपर नीचे चली जाती है, और जब उसको आराम से ऊपर की तरफ खींचते हैं तो वो बकेट को बिना किसी नुकसान के ऊपर ले आता है और हमें ज्यादा जोर भी नहीं लगता. ठीक है. Now next is parts of a pulley. A pulley consists of a circular disc made up of metal, plastic or wood which can rotate about an axle passing through its center. It has a groove cut along its rim so that a string can pass around it. The end of axle are supported on a frame known as block. Figure page number 62, figure 4.27. देखिए एक्सेल दिख रहा है, ग्रूव रिम दिख रहा है. दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. अब द Yes, पुली से लेके नोन एज द ब्लॉक तक को अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग. पुली कंसिस्ट ऑफ से लेके नोन एज द ब्लॉक से अंडरलाइन कर लीजिए. Done. Up a single fixed pulley. A groove well is fixed to a support high up. A rope goes around the wheel. The load is fixed to one end of the rope. The effort is applied downwards at the other end of the rope. It pulls the load upward. The load and the effort move equal distances but in opposite direction. फिगर 4.28 देखिए, वो बच्चा या वो जो बच्चा है वो ऊपर नीचे की तरफ एफर्ट दे रहा है और वो लोड है वो ऊपर की तरफ आ रहा है. अब ये बोल रहा है कि वो जितना एफर्ट देगा यानी जितना वो नीचे की तरफ खींचेगा उतना ही ऊपर लोड जाएगा, या ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ इधर कम एफर्ट दे रहा है तो लोड भी उधर कम होगा या ज्यादा होगा, बराबर होगा. जितना एफर्ट दे रहा है उतना ही लोड ऊपर जाएगा. A single fixed pulley is used for hoisting a flag and by construction worker for lifting bricks. अब देखिए इसको अंडरलाइन करिए. Where is single fixed pulley used? A single fixed pulley is used for hoisting a flag. जब हम लोग 15 अगस्त या 26 जनवरी को फ्लैग लगाते हैं ऊपर,
तो वो कौन सा एग्जाम्पल होता है? सिंगल फिक्स्ड पुली का एग्जाम्पल होता है। और कंस्ट्रक्शन वर्कर फॉर लिफ्टिंग ब्रिक्स, तो कहां से अंडरलाइन करेंगे? अ सिंगल फिक्स्ड पुली से फ्रॉम द ग्राउंड टू द फ्लोर अबाउ, ये अंडरलाइन करेंगे। आगे बढ़ू मैं? यस मैम। अभी तक कोई डाउट? नो मैम। देखिए कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, डरिए मत कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको पूछना जरूरी है, वरना मेरे को ये समझ में नहीं आएगा कि आप लोग कहाँ अटक रहे हैं। आगे बढ़ू? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Now, a single fixed pulley, the effort and the load are the same if there is no friction between the rope and the wheel. However, if there is friction, more effort will be needed to overcome the friction. आप देखे होंगे कभी भी, जैसे हम लोग कोई कुएं से पानी निकालते हैं, जो वो पुली रहता है उसमें हम लोग तेल डालते हैं, या दरवाजे में जब हिंजस में आवाज आने लगती है तो वो तेल डालते हैं। वो तेल क्यों डालते हैं? ताकि आवाज ना आए। आवाज क्यों आती है? देखिए, जब हम जैसे मान लीजिए आप फर्श पे खड़े हैं और तेल गिर गया है फर्श पे, तो आप लोग फिसल जाते हो, यस मैम। है ना? या साबुन या हम लोग जैसे साबुन पानी गिर गया है फर्श पे तो फिसलते हैं हम लोग, है ना? यस मैम। यस हाँ, मैम। तो वो इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन जो हमारे पैरों के जो हमारे पैर हैं और जमीन के बीच में फ्रिक्शन होता है, तभी हम चल पाते हैं। मान लीजिए अगर उसके बीच में तेल या साबुन का पानी आ जाए तो वो फ्रिक्शन चला जाता है, जिसके कारण हम खड़े नहीं हो पाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। तो इसीलिए however if there is a friction more effort will be needed to overcome the friction। अब देखे होंगे कभी कभी छूट जाता है किसी किसी से पानी का बकेट निकालते निकालते, तो क्या होता है? फ्रिक्शन वहां बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि फ्रिक्शन उसे नीचे ढकेलेगा। अब a single movable pulley system, in a single movable pulley system, the wheel rests on the rope. The load is fixed to the wheel. One end of the rope is fixed. The wheel and the load moves upward when the free end of the rope is pulled. The force required is less than the load, but it moves a greater distance. अब इसमें क्या था? सिंगल फिक्स्ड पुली में एक ही ये फिक्स नहीं है। भी देखिए भी दे रहा है और लोड भी फ्री है, लेकिन अब आप फिगर 0.30 पे आएंगे तो ये देखिए इसका एक एंड एक सपोर्ट से फिक्स्ड है, दिख रहा है? रिजिड सपोर्ट से फिक्स्ड है। नो मैम। 4.30 रिजिड सपोर्ट से मूवेबल जो व्हील है वो फिक्स्ड है एक तरफ, यस मैम। और जो लोड है हमारा वो व्हील से अटैच्ड है। यस मैम। अब क्या हो रहा है? अब वो एफर्ट ऊपर की तरफ लगा रहा है, ठीक है? अब इसमें ये फायदा है कि आपको सिंगल फिक्स्ड पुली के अपेक्षा में यहाँ पे कम फोर्स लगाने की जरूरत होती है, और अब आप आग इसको जो लोड है उसको कई देर तक उठा सकते हैं। समझ में आ रहा है? फिगर 4.28 में देखो, अगर वो उसको छोड़ दे रस्सी को तो लोड नीचे गिर जाएगा। यस मैम। यस मैम। लेकिन फिगर 4.30 सिंगल मूवेबल पुली सिस्टम में अगर वो छोड़ भी दे तो लोड नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। अब बेनिफिट्स ऑफ अ पुली सिस्टम, a combination of a fixed and a movable pulley enables a small effort to lift a heavy load. The effort moves much more than the load when more wheels are used, so less effort is used to lift the load. For example, in a 4 pulley system, अब देख रहे हैं मैंने ये बोला कि अगर
सिंगल मूवेबल पुली सिस्टम में अगर आप व्हील्स एक व्हील लगाएंगे तो आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। मान लीजिए इसकी जगह 4 व्हील लगे हुए हैं तो आपको बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ेगा लोड को लिफ्ट करने के लिए। सही बोल रही हूँ कि गलत? मैम सही। मैम सही। सभी को क्लियर हो रहा है? सभी को क्लियर हो रहा है? यस मैम। यस मैम। अब देखिए मेंटेनेंस, लास्ट टॉपिक, मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ मशीन्स। Machines are used for convenience. We should take proper care of them to get trouble-free service for a longer period. Most of the machine have iron parts in them. Iron gets rusted. To protect the outer parts of the machine from rusting, they should be painted. Sorry. तो किसी भी मशीन को रस्ट से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसे पेंट करके रखना चाहिए। क्यों? ताकि उसमें जंग ना लगे। जंग लगती है, देखिए हो गेट्स वगैरह देखते हो कैसे काले पीले और काला लाल और पीले हो जाते हैं गेट्स। यस मैम। यस मैम। यस मैम। लेकिन अगर उसी गेट को हम लोग पेंट कर देते हैं तो ऐसा होता है नहीं ना? हाँ। moving parts Okay, moving parts of a machine suffer a lot of wear and tear. They also start making harsh sounds. Such parts should be lubricated regularly. वही मैं बोल रही हूँ, दरवाजा जब नया होता है तो उसमें आवाज नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है उसमें आवाज आने लगती है। तो इसीलिए हम लोग को बोलते हैं कि तेल डालो या ग्रीस डाल दो। आप लोग की साइकिल में भी, आप लोग साइकिल चलाते होगे तो चेन में ग्रीस डालते हो आप लोग? यस मैम। हाँ, तो इसलिए डालते हैं यस ताकि मैम। यस, तो इसलिए डालते हैं ताकि चेन टूटे ना। ठीक है। Machines used to protect from dust and dirt to reduce wear and tear. When a machine is not in use, it हेलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। इंटरनेट चला गया Yes, था, ma'am. सॉरी। तो we were last seeing machines needs to be protected from dust and dirt to reduce wear and tear. When a machine is not in use, it should be covered. हमारे घर में, अंजलि प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो हमारे घर में जैसे मान लीजिए सिलाई मशीन है या फिर कोई भी मशीन रखी हो, जैसे आपकी मिक्सर वगैरह रखी रहती है किचन में, तो मम्मी काम खत्म होने के बाद उसको ढक देती है कवर से। Yes, ma'am. के घर में कोई ना मशीन है। यस मैम। वॉशिंग मशीन
वॉशिंग मशीन भी घर में यूज होती है, फिर उस काम खत्म होने के बाद मम्मी उसको ढक देती हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ना? या आपकी गाड़ी, जैसे आपने गाड़ी बाहर रखी, अपने घर में गाड़ी होगी या स्कूटी वगैरह जो भी होगा, तो उसको जब आप घर में ला लेते हैं रात को, तो पापा या मम्मी उसको ढक देते हैं किसी न किसी चीज से। यस मैम। हाँ, तो ये बोल रहा है machine need to be protected from dust and dirt to reduce wear and tear. By proper care and maintenance we can increase the life of the machine. यही बात बोली जा रही है कि अगर आप किसी मशीन का ध्यान रखेंगे तो उसकी लाइफ ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फोन भी एक मशीन ही है। अगर आप उसको ज्यादा यूज करेंगे, उसको प्रॉपरली चार्ज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उसकी बैटरी खराब हो जाएगी। यही होगा। Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, so with this we have completed the lesson. Now we have 5 minutes left, so I'm going to give you some important from this lesson that will be beneficial for your exams. Okay, so please note down, or you can take it in your textbook only. Pick the odd one out. Page number 66, question number 5 is important with respect to exams. देखिए पूरा important है, मैं बस इतना बता दे रही हूँ कि ये आएगा. This will be coming in exams, so you have to read everything and especially emphasis on these questions. Question number 5. Ma'am. Yes. Ma'am. Ma'am, Yes. can you please last paragraph's third line? Last paragraph, third line. That is moving parts of a machine. Sorry, machines. Yes, ma'am. Which point? Moving parts of a machine. Yes, ma'am. Okay, moving parts of the machine suffers a lot of wear and tear. They also start making harsh sounds. Such parts should be lubricated regularly. जैसे मैंने आपको बताया गेट का एग्जांपल दिया, जैसे गेट यानी दरवाजा, आप लोग के घर का दरवाजा। मान लीजिए अगर आपने कोई नया दरवाजा लगाया है तो वो आवाज नहीं करता है खुलते बंद होते समय, लेकिन अगर आपका दरवाजा पुराना होता जाता है तो उसमें से स्क्वीक स्क्वीक की आवाज आती है। सिमिलरली साइकिल में भी यही होता है, नई नई साइकिल में कोई आवाज नहीं आती है, लेकिन पुरानी जैसे होती जाती है उसमें घड़ घड़ या क्विक क्विक करके आवाज आने लगती है। आती है? Yes, ma'am. Riddhi, are you listening and are you understanding what I'm saying? Yes, ma'am. So in order for that not to happen, such parts should be lubricated. Lubricated in the sense to add grease or oil or any oily substance so that machine can function properly without less wear and tear. ठीक है? Yes, ma'am. Okay, I'm giving you important. So question number 5, pick the odd one out. And question number 4 from numerical 69 page. Now in next class, that is on tomorrow, right? Tomorrow we have next class, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tomorrow Yes, in ma'am. the regular timing. Yes, ma'am. Tomorrow in the regular timing, I will give you question answers as well as I will give you all the question answers. That is question number 1 from page number 65 to 69. I will give you the answers. Yes. Yes, Sarika. कैमरा और वॉल्यूम ऑफ करके अंदर रखना, ठीक है? Sarika, if you want to say something, say, otherwise mute yourself. हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मैं आपको कल जो हमारी स्कूल में जो क्लास है, टाइमिंग जो है, उसमें मैं आप लोगों को सारे आंसर्स दे दूंगी क्वेश्चन नंबर 65 से लेके 69 तक। लेकिन इसमें न्यूमेरिकल्स हैं जो लास्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स,
उसका भी मैं एक अलग क्लास लूंगी जिसमें मैं आपको आप सामने में बैठ के समझाऊंगी कि कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है। कल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर्स दूंगी जो आप अपनी नोटबुक में नीटली लिख के मुझे दिखाएंगे। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस? यस मैम। नो मैम। हाँ, मैं तो यही बोल रही हूँ कि आप लोग पहले नो लिख मैम। लीजिए, पहले लिख लीजिए सारा कुछ। उसके बाद मैं ऐसे ही एक टीम्स की क्लास लूंगी जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपके सामने बताऊंगी, सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर फॉर यू। इज इट ऑल राइट? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। सो इफ यू हैव व्हाट, किसी को कुछ बोलना है? वी हैव ओनली 1 minute. Okay, so I am asking you, if you have any doubt throughout the chapter, please message me on my WhatsApp. Message. And thank you all. Please start leaving the meeting. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Welcome. थैंक यू मैम।